हेलो। So should we start the class? Is my voice audible to you? Is my voice audible to you? Yes, sir. So should we start? Okay. Rivanshi again. We should continue. Switch on your video, everybody. 1, 2, 3, 4, 6, 7 students. Okay, everybody switch on your video. Everybody. My video is not available. Next. Stuti, switch on your video. Okay. Radha, okay. Okay, thank you. Thank you. Now let's start. Okay. चलो, कल जो हम क्वेश्चन दिए थे वो समझ में आया था? स्नेहलता तुम बनाई नहीं? You have not submitted the answer. सर तबीयत नहीं ठीक है कुछ दिन से अच्छा, बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, डोंट कोशिश करो बनाने का। आज भेज देंगे। आज तो हम डिस्कस ही उसको करेंगे, ठीक है? चलो, लेट्स okay. Let's see this question answer which we have to discuss. Okay. चलो, I hope it is visible. सबको दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा कर दें, ठीक है? अब इतना ठीक है? चलो, let's see the answer. Create the table. You have to create this table. ठीक है? और कल हम तुम्हारे वाले में ये वाले पार्ट को हटा दिए थे विथ प्राइमरी की कांस्टेंट। ये वाला पार्ट हम एक हटा दिए थे, ठीक है? देखो यहाँ पर हम बोल्ड कर दे रहे हैं इसको। फिर यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट ये है, इसको भी हम I am also making it green and bold. Okay, I have also कल हम yesterday I have removed this. Okay, now let's come to this. So how we will create this table with this two constant? One is the primary key and other is the EMP number not null. EMP number and not null. EMP number, ठीक है? एंड यहाँ पर नहीं होगा, EMP नंबर एंड नॉट नल नहीं होगा, EMP नंबर शुड नॉट नल. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट. तो क्रिएट टेबल का नाम क्या है? EMPL.
then here we have given the bracket. It is EMP number. EMP number, it is of integer data type. चलो बोलते जाना, क्या नाम है? श्रद्धा, श्रद्धा बोलते जाना. Yes, sir. Size 4. EMP. Okay. 4. Size E-name. 4. Okay. And then देखो यहाँ पर प्राइमरी की भी करना है ना, प्राइमरी की भी Yes, करना sir. है. Okay. EMPL. Here we will write primary, PRIMARY, primary key. Okay, here we will write primary key. Then comma, we will give the next field. It is ename. E-name. Okay, what is the data type? It is varchar. Varchar And size 20. it is 20. Okay, next Job. it is job. It is also Varchar. of varchar. It is again of 20. I give. Okay, then 20. it is comma MGR. Int. MGR. कल तुम्हारे वाले में हम करेक्शन में हम एक जगह पर हम तो कुछ छोटा सा डॉट लगाए होंगे, वहां पर डॉट क्यों लगाए हैं? कॉमा पड़ेगा, सेमी कॉलन नहीं पड़ेगा. तुम सेमी कॉलन दे दी हो, ठीक है? Yes, इसीलिए हम लगाए. इंटीजर, इट विल बी ऑफ साइज 4. नेक्स्ट वन, इट विल बी सेड बाय, ये कौन बताएगा? नेक्स्ट वन बताओ वाणी, तुम बताओ. यहाँ पर नेक्स्ट वाला तुम बताओगी. चलो बताओ वाणी. वाणी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताओ. It will be of date data type. Date. Then shall. Shall. It will be of integer. It will 7. be of size 4. Okay, and then Com. COMM. then we have again comma, then it is com, and it will be of Integer. integer, size 3. 3. And then it is DEPT, number. Integer 2. Size 2. Right, bracket, close, semicolon. This will be the answer. Okay, this will be the answer of this very question. I hope you have understood it. Now next question is insert record in the table. ठीक है, insert record in the table. What we will do? Insert into EMPL values, and here we will write the value bracket 8369. Okay, comma 8369. Then it is Smith, and then it is job. Okay, then it is job. clerk. Job का क्या है? Clerk है, sorry, clerk. And then it is MGR. It is 8902. And then hire date. It will my voice is audible to you? Net has became weak. YY फॉर्मेट में चलता है. सबसे पहले ईयर इसमें होगा, ठीक है? 90 12 and it is 18. ओके, देन कमीशन. देखो यहाँ पर इसी जगह पर देखने के लिए हम इसको पूरा लिख रहे हैं. श्रद्धा, आई होप यू आर सीइंग इट. ईशा, yes sir. और स्नेहलता, आई होप यू आर सीइंग इट. इसको देखो, हम इसी जगह पर बता रहे हैं. नल है ना, कमीशन में क्या है? नल है. तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर नल लिख दें और यहाँ पर 20 लिख दें, हमारा काम हो जाएगा. दूसरा तरीका, दिस इज वन वे. आई हैव सैलरी नहीं लिखे. सैलरी कहाँ छोड़ दिए? अच्छा, फिर एरर देगा. और सर्दी हो गया है क्या? yes. सर्दी हो गया है क्या श्रद्धा? yes sir. चलो टेक केयर. ओके, देखो यहाँ पर, तो ये समझ में आ गया. आई होप इट इज क्लियर. अब देखो दूसरा कैसे होगा. अब हमें इंसर्ट करना है. किसमें? इसमें इंसर्ट करना है, इसमें इंसर्ट करना है, इसमें इंसर्ट करना है, इसमें करना है, सिर्फ इसमें नहीं करना है. ठीक है, आई हैव नॉट टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन दिस कमीशन, इन दिस फील्ड दैट इज कमीशन. तो हम देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू EMPL. अब किस किस फील्ड में इंसर्ट करना है हमको? EMP नंबर में करना है, ई नेम में करना है, जॉब में करना है, MGR में करना है,
HIRE हायर डेट में करना है, सेल में करना है, कमीशन में नहीं करना है, कमीशन नहीं लिखेंगे, DPT नंबर में करना है। ठीक है, ये हो गया। मीन्स इट मीन्स we want to insert values in these column only। अगर हम यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर insert into EMPL, EMPL का हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे हैं। पहले वाले केस में देखो यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखे हैं। इसका मतलब कि हम सारे फील्ड में हम वैल्यू डाल रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यूज इन ऑल द एट्रीब्यूट्स। अब हम यहाँ पे क्या लिखे, अब हम यहाँ पे क्या लिखे, इंसर्ट इनटू EMPL, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, मतलब हम इस फील्ड में वैल्यू डालने जा रहे हैं। क्या वैल्यू डालने जा रहे हैं, वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज प्रत्युष राज एंड प्रिया रानी 5 is। okay, I am going to add values in this field। okay, what will be its value, 838369, and then Smith, and then clerk, and then MGR 8902, and then it is hire date, it is 1990-12-18, and then we have shall, this is 8000। अब देखो उसके बाद नहीं ना है, सेल के बाद सीधा क्या है, DPT नंबर, DPT नंबर 20। ठीक है, one way is to insert like this। I hope it is clear to you। Yes sir। सभी को समझ में आ गया ये? Yes sir। जिस किसी को समझ में नहीं आया बोलोगे, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? श्रद्धा आया समझ में? Is it clear? Snehata, is it clear both the differences? Yes sir। दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया? ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। स्तुति बताएगी। स्तुति टेल मी, स्तुति टेल मी। देखो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर शुड नॉट बी नल, यहाँ पर हम एक EMP नंबर शुड नॉट बी नल। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्ले द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। चलो डिस्प्ले कैसे करेंगे बताओ? स्तुति और रिवांशी, स्नेहलता बताओ। Select a star from EMPL। Select a star from EMPL। Absolutely correct, it is 100% correct। okay, next, display, ये बोलती जाओगी, लगातार बोलते जाओगी। display EMP number and E name of all employees from table EMPL। चलो बताओ जल्दी, बोलो Select from, बोलो। select ईशा, ईशा, ईशा बोलो, चलो ईशा बोलोगी, बोलो जल्दी। ईशा प्रिया। sir, select from, select from EMPNO, EMPN, ऐसा? हाँ, and इसके पहले वाला कौन बताई थी? तुम ही बताई थी ना? देखो इसके पहले वाला कौन बताई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, स्नेहलता तुम बताई हो? Yes sir। सही है। बानी तुम बताई? सर अभी कौन बताई? बता रहे थे सर। नहीं सुन पाए थे? देखो फिर से देखो, हम समझा तो देंगे, कम से कम नाम तो बताओ, बताओ तो कम से कम। देखो यहाँ पर क्या है, अभी इस क्वेश्चन में क्या बताया, ऑल रिकॉर्ड है ना, ऑल, हियर इट इज ऑल, hence we have given a star। okay, all star means all। here what we want to see, हमें क्या देखना है, we have to display, we have to see EMP number and E name। क्या देखना है, we have to see EMP number and E name। चलो अब तो बताओ, चलो वानी बताओ, सेलेक्ट, क्या देखना है, EMP number, E name From EMPL। I hope it is clear। I hope it is clear। देखो अगर नहीं बताती हो तो कम से कम ये तो बताओ कि समझ में आ रहा है। Are you following?
नेक्स्ट डिस्प्ले, देखो यहाँ पर इसका बताओगे, डिस्प्ले डिस्प्ले ई नेम सेल एंड सेल एडेड विथ कमीशन फ्रॉम द टेबल। चलो बताओ क्या होगा, बोलो गोविंद से। ईशा प्रिया स्तुति बताएगी, रिवांशी रिवांशी नहीं, स्नेहलता तुम बताओ। Select ename, cell plus commission from EMPL. वेरी गुड, 100% करेक्ट इट इज। बात समझ में आ गया, ठीक है। सेल प्लस कमीशन को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिराइव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट हु आर नॉट गेटिंग कमीशन फ्रॉम टेबल ईएमपीएल। जो कमीशन जिसको नहीं मिल रहा है, कमीशन किसको किसको नहीं मिल रहा है, 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 मतलब कमीशन जिसका नल है, ठीक है, दोज हुज कमीशन इज नल, वो विल से, ठीक है। क्या क्या डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट सेलेक्ट बोलो सेलेक्ट, बोलो श्रद्धा बताओ, सेलेक्ट नेम। नहीं सर, ये नहीं बना। बोलो, देखकर तो बोलो कम से कम। सेलेक्ट नेम शैल, डिपार्टमेंट नंबर का क्या है, DEPTNO, DEPTNO डिपार्टमेंट नंबर, नेम टू डिस्प्ले सैलरी डिपार्टमेंट नंबर और फ्रॉम EMPL। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है, फ्रॉम EMPL वेयर कमीशन इज नल, COMM is null, okay, where commission is null। I hope you have understood it। यहाँ कमीशन नल है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी एंड सेल इनटू 12 एज एनुअल सैलरी फ्रॉम टेबल EMPL। चलो इसका कौन बताएगा, बोलो। सेलेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर EMPNO। देखो क्या डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले करना है, नेम करना है, सेल करना है, EMP नंबर, ई नेम, फिर उसके बाद क्या है सेल, और फिर उसके बाद क्या है सेल इंटू 12, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल इंटू 12, उसका नाम क्या रहेगा, एनुअल सैलरी, ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा, एनुअल सैलरी। यहाँ पर एस को ऐसे लिख देंगे, एनुअल सैलरी, एनुअल SALA सैलरी, उसका नाम क्या रहेगा, एनुअल सैलरी। अब फिर उसके बाद फ्रॉम EMPL, यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, फ्रॉम EMPL। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है सबको, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? Next, list the distinct number in employee in table EMPL। distinct department number क्या है, distinct let's see what is meaning of distinct। okay, distinct department number, where is department number, देखो यहाँ क्या है, 20 है, 30 है, 30 है, 10 है, 20 है, 10 है, तो बार बार जो रिपीट कर रहा है। what does distinct clause do? Distinct clause remove the repetition, okay, distinct clause remove the repetition, okay। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ डिपार्टमेंट, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है बिना रिपीटेशन के देखना है। लिस्ट ऑल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट DEPTNO from EMPL, ऐसे लिखेंगे। now if we have to see the department number, how we will write, this type we will write, but I only distinct, so we will write DISTINCT distinct,
ओके, तो वी विल इसके अंदर हम डिस्टिंक्ट के अंदर इसको डाल देंगे, मतलब अब क्या होगा, रिपीटेशन हट जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, Yes, लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड व्हिच सैलरी इज, लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड व्हिच सैलरी इज लेस देन 10,000। चलो कौन बताएगा, who will say? श्रद्धा ही बताएगी, बोलो बोलो श्रद्धा। select ऑल रिकॉर्ड है, ऑल रिकॉर्ड है। star स्टार star from EMPL comma where shall कॉमा, यहाँ कॉमा कहाँ से लगेगा कॉमा? कल हम क्या समझाए, कल हम एक बात समझाए कि दिमाग में डाल लो, कॉमा इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एट्रीब्यूट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, उसके बाद कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए क्या लगता है, वेयर। वेयर shall less than का साइन without हाँ 10,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी, किसी को समझने में कोई दिक्कत? लिस्ट ऑल रिकॉर्ड व्हिच सैलरी इज बिटवीन 20,000 एंड 50,000, जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है और 50,000 से कम है। ठीक है, जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है और 50,000 से कम है। ठीक है, दोस्त व्हिच सैलरी इज ग्रेटर देन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हिच सैलरी इज, सैलरी ग्रेटर देन 20,000 and salary greater than less than salary less than 50,000। ओके, हम इसको ऐसे भी, तो बताओ इसका क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड। चलो ये बताओ क्या इसका नाम है, स्नेहलता तुम बताओ, बोलो स्नेहलता, बोलो जल्दी। select salary from, मेरी बात तो सुनो पहले, देखो कि Select क्या star। सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन में देखो स्टार होगा, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। ठीक है, कंडीशन क्या है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 एंड सैलरी लेस देन 50,000। बात समझ में आई गई? yes sir। ठीक है, लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु हैव 4 लेटर्स इन देयर नेम। ठीक है, जिसके नाम में 4 अक्षर है। डिटेल, डिटेल देखना है, सारा देखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक। कैसे, 4 लेटर होना चाहिए ना, एक, ठीक है, देखो यहाँ पर एक कॉमा 2 3 4। ठीक है, जहां पर 4 लेटर होना चाहिए। ठीक है, कितने लेटर होना चाहिए, 4 लेटर का नाम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम EMPL वेयर नेम लाइक 4। अब ब्लैंक दे दिए हैं, 4 में कुछ भी हो सकता है। मान लो हम चाहते हैं कि वैसा नाम दिखाए जिसमें AMIT, अमित ही रहे। ठीक है, अमित जिसका 4 लेटर का ही रहे और शुरू का 4 लेटर, जो 4 लेटर है वो अमित ही रहे। AM, या मान लो AM रहे। ठीक है, AM रहे तो हम उसमें क्या करेंगे, AM रहे तो उसमें हम क्या करेंगे, आगे ऐसे हम AM लगा देंगे, मतलब पहला 2 लेटर उसका AM रहेगा और 2 लेटर कुछ और रहेगा। ठीक है, मगर हम क्या बोल रहे हैं कि 4 लेटर कुछ भी रहे, तो कुछ भी रहे के लिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज व्हिच नेम स्टार्ट विद M। बताओ क्या होगा, स्नेहलता बताएगी। स्नेहलता, select a star from EMPL हाँ where name like हाँ, शुरू होता है, शुरू होना है ना, तो M। पीछे शुरू है तो पीछे। ठीक है, वेयर नेम लाइक M%। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बात समझ में आ गया होगा?
ये सारा पीडीएफ इसको जो हम दे रहे हैं उसको रखते जाना, ठीक है। रिवीजन में और सारा चीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, एज ए पार्ट ऑफ रिवीजन। ओके, लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज whose name ends with A, जिसका नाम A से समाप्त होता है। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL where name like, क्या होता है? अंत हो रहा है, ठीक है। अंत हो रहा है तो शुरू में डालेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सबको समझ में आ गया? सब बोलती ही कहाँ है, वो तो लगता है कि सब मोबाइल ऑफ करके सूत जाती है। स्तुति जैसा लग रहा है कि सूत जाती है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। क्लास इज नॉन इंटरैक्टिव। रिवांशी जगी हुई हो, कोई फीडबैक नहीं है। वानी, कैन यू हियर मी? नेक्स्ट, लिस्ट द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वेयर कमीशन इज नॉट नल। ठीक है, चलो श्रद्धा बताओ क्या, श्रद्धा स्नेहलता तुम बताओ क्या होगा? नेम देखना है। क्या देखना है? नेम। We have to see name. Hence we will write select e name from EMPL where commission is not null. ठीक है, जहां कमीशन नल रहेगा उसके लिए क्या करेंगे? Where commission is null, where commission is not null. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, list the detail of all employees who are either clerk, ये जो बता दो। चलो देखते हैं क्या नाम है उसका, बताओ स्नेहलता। देखो और लगा हुआ है, बोलो जल्दी। डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉय, डिटेल देखना है, सारा फील्ड देखना है, ठीक है। ऑल फील्ड, स्टार फ्रॉम EMPL वेयर, बोलो वेयर जॉब where job is equal to clerk, ओके, और job is equal to salesman. वेरी गुड। ज्यादातर गलती यही होता है, ऐसे कर देगा इज इक्वल टू ऐसे और फिर यहीं पे लिख देगा सेल्समैन। ओके, ये मिस्टेक ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पर होना क्या है? वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL where job in यहाँ पर हम जितना भी है ऐसे लिख देंगे CLER क्लर्क, फिर मान लो सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन ऐसे कर दिए, ठीक है। बात समझ में आया दोनों में? अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको राइट द सेम SQL स्टेटमेंट बाय रिमूविंग और, क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट दिस SQL स्टेटमेंट दिया हुआ है बाय रिमूविंग और, या मान लो इस तरह से दिया हुआ है, लिखा हुआ रहेगा राइट द SQL स्टेटमेंट बाय यूजिंग और। ठीक है, बात समझ में आ गया? लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज who were hired in 1991. List the detail of all employees who were hired in 1991. तो यहाँ पर देखो ईयर फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर ईयर और हायर डेट HIREDAT वेयर हायर डेट इज इक्वल टू 1991। आई होप इट इज क्लियर। बात आया समझ में? आई होप इट इज लिस्ट ऑल द रिक्वायर्ड, ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, चलो ये पढ़ाया हुआ नहीं है, ठीक है। लिस्ट द रिकॉर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, ये तो बात का चीज है, इसको हटाएंगे अभी हम। लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, इंक्रीज द सैलरी, अपडेट स्टेटमेंट पढ़ाए नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर डिलीट ऑल रिकॉर्ड
वेयर कमीशन इज नल, इसमें क्या लिखेंगे, डिलीट, यहाँ पर डिलीट लिखेंगे, ड्रॉप नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड, ओके, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, what is difference between drop and delete, okay, what is difference between drop and delete, you will see it, there is wide difference between drop and delete, ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर अभी देखेंगे, we will see the difference between drop and delete, okay, let's see, चलो देखते हैं यहाँ पर ड्रॉप और डिलीट में क्या अंतर है। दिस इज ड्रॉप, ओके, और ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर ले लेते हैं डिलीट, डिलीट, दोनों में क्या अंतर है देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, ओके, लेट्स सी फर्स्ट, drop is used to remove column of table, ठीक है, ड्रॉप इज यूज टू रिमूव कॉलम, ठीक है, ड्रॉप इज यूज टू रिमूव कॉलम ऑफ टेबल, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस, ओके, जबकि वेयर एज डिलीट इज यूज टू रिमूव, डिलीट इज यूज टू रिमूव record, delete is used to remove record from table, ठीक है, समझ में आ गया, और ये कैसा कमांड है, this is example of DDL, data definition language, this is example of data definition language, and this is example of DML, data manipulation language, ठीक है, I hope you are getting it, I hope you all are getting it, एक और डिफरेंस इसमें है, एक और डिफरेंस है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, we use alter टेबल का नाम, alter table, name of table, then we write drop, and then we write name of column, I hope it is visible to you, ठीक है, next you see it, इसको हम कैसे लिखते हैं, delete from टेबल का नाम, delete from, here we will write table name, delete from table name, ओके, और ये इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, delete from table name where condition, ओके, समझ में आया, I hope it is clear to you, तो ड्रॉप और डिलीट में अंतर यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, ड्रॉप और डिलीट में अंतर समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप लिखेंगे या डिलीट लिखेंगे, here we will write
delete from from EMPL where COMM is null. I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. Any problem? Now next question is, drop the table. Okay, next question is drop the table. ठीक है, टेबल कैसे ड्रॉप होगा? हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? ड्रॉप टेबल EMPL. I hope it is clear to you. I hope it must be clear to you. ठीक है, लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर देखो, इसको भी समझा देते हैं. लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम EMPL, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय DEPTNO. असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो ASC लिख देंगे. ये बात समझ में आ गया श्रद्धा? यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या देखना है सारा रिकॉर्ड. ठीक है, आई हैव टू सी ऑल द रिकॉर्ड. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर. अब कैसा ऑर्डर रहेगा? असेंडिंग रहेगा, तो यहाँ पर असेंडिंग लिख दिया. ठीक है, अगर मान लो रहता लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP, ऑर्डर बाय DEPTNO DESC. ठीक है, लिस्ट ये वाला बताओ क्या हो जाएगा? लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी. ठीक है, लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी. बोलो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय सेल DSC. कैसा ऑर्डर रहेगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग? DESC. ठीक है, ये कैसा रहेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा. इंक्रीज द सैलरी एम्प्लॉइज बाय 10%. ये अपडेट का था, अपडेट कल बताएंगे हम. ठीक है, अगर इसको तुम लोग प्रैक्टिकल में अगर देखना चाहते हो तो शाम के समय में या किसी भी समय में, शाम के समय में 4 बजे यू कैन कनेक्ट टू एंड आई विल शो यू प्रैक्टिकली. हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे. ठीक है, समझ में आया? दिक्कत? रिवांशी क्या बोल रही थी? कुछ मैं इसमें लिखी थी. रिवांशी सर कल का वीडियो भेज दिए हैं ना, तो सब वीडियो हम डाल देते हैं भाई. वीडियो डाला हुआ है. ठीक है, और बताओ. अनीशा आज नहीं आई, किसकी फ्रेंड है? तो ठीक है, टाइम इज गोइंग टू बी अप. समय होने जा रहा है. इफ यू वांट टू डू द क्लास, प्रैक्टिकल देखना चाहते हो इसी चीज का, शाम में कनेक्ट हो जाओ. ठीक है, ठीक, मैसेज करना, फिर हम करके दिखा देंगे इस चीज का प्रैक्टिकल. ठीक है, चलो बाय.